موٹاپے کا علاج ہے، پرانی قبض کا علاج ہے، السر بواسیر پرانی کا علاج ہے۔ ہاں جو بلڈ پریشر سے تھک گئے ہوں میرا ٹوٹکا یہی استعمال کریں، بلڈ پریشر کا علاج ہے۔ پرانا ٹائیفائڈ جب بگڑ گیا ہو، ہر عصر کی نماز یعنی دن ڈھلتے بخار آتا ہو، یا پھر ٹائیفائڈ کا بار بار حملہ ہوتا ہو، اس کا لاجواب علاج ہے۔ پانی میں گھول کے استعمال کریں، گرم دودھ میں گھلوا کے۔ پرانے بخاروں کے لیے میں نیم گرم دودھ میں اس کا ایک بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں استعمال کراتا ہوں صبح شام، پرانے بخاروں کے لیے۔ ایسے لوگ جو گرمی میں رہتے ہوں، ایسے لوگ جن کو بہت اعلیٰ غذا نہ ملتی ہو، ایسے لوگ جو گرمی میں تھک گئے ہوں، ان کے لیے پانی میں یا یہ میں نے شکر رکھی ہے ساتھ، اس شکر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، بہت بہترین۔ یہ گرمیوں کا مشروب بھی ہے، یہ سردیوں کا ساتھی بھی ہے، یہ صحت کا راز بھی ہے، حقیقتاً راز ہے اور بہت زبردست راز ہے۔ میں نے اس کو کہاں نہیں استعمال کیا، کہاں نہیں استعمال کیا۔ موٹاپے میں ایسی خواتین جو حاملہ، زچگی اور اس کے بعد پھر ان کا موٹاپا نہیں جاتا، ان کو میں نے استعمال کرایا باقاعدگی سے۔ کچھ مصنوعی غذائیں نہ کھائیں اور اس کو استعمال کریں۔ آپ سردی میں گرم دودھ میں ڈال کے استعمال کریں، نیم گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں، یا منہ میں ڈال کے اوپر سے گرم پانی، ہلکا سا تازہ پانی پی لیں۔ آپ گمان نہیں کر سکتے یہ کس مرض کا علاج ہے۔ اچھا نا، اس کا ایک ذرہ کیا کرتا ہے، یہ چربی کو اپنے ارد گرد لپیٹتا ہے۔ وہ چربی احتجاج کرتی ہے، نہیں میں نے اس جسم میں رہنا ہے، اس نے بد پرہیزی کی ہے، مجھے جسم میں داخل کیا ہے چکنائیوں کو، چربیوں کو، کولیسٹرول کو، فلاں چیز کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نکالنا ہے، اس کو پکڑ کے باندھتا ہے، باندھ کے خوب طریقے سے باہر نکال دیتا ہے اجابت کے ذریعے۔ ایک اس کا بیج ہمارے جسم کا ساتھی ہے، روگوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے ایک دفعہ اس کو ایک اور طریقے میں استعمال کرایا۔ ایک صاحب تھے جو کہتے تھے میں نے اپنے ایک سلیبس میں انگلش میں کہتے تھے پڑھا تھا، دی مین ہو واز اے ہاسپٹل، اس طرح کو کوئی لفظ کہا۔ کہنے لگا میں بس وہ بندہ ہوں جو واقعی ہسپتال ہوں، دنیا کا ہر مرض میرے پاس ہے۔ میں نے کہا صرف 40 دن کے لیے ایک ٹوٹکا بتاؤں گا، اور 40 دن کی ٹوٹکا یہ ہے کہ اس کے 2 چمچ گلاس پانی لے لے، اس میں گھولنے کے بعد فوراً پی جاؤ، گھونٹ کر کے فوراً، اور اگر نیچے بیٹھے تو اسی چمچ سے اس کو ہلاتے رہیں، اس کو فوراً پی جاؤ۔ صبح دوپہر شام لے لے، صبح شام تو لازم لے لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ صرف 2 ہفتوں کے بعد اپنی آدھی گولیاں چھوڑ چکا تھا، بہت دوائیں کھاتا تھا، اور 3 ہفتوں کے بعد وہ چوتھائی گولیاں، اور 4 ہفتوں 5 ہفتوں کے بعد غالباً 40 دن کے بعد اس کی گولیاں چھوٹ گئیں، اس کی دوائیں ختم ہو گئیں۔ جو بیماریوں کا محور مرکز بنا ہوا ہے، جس کے ارد گرد بیماریاں، روگ، تکلیفیں ہیں، اس کے لیے بہت لاجواب ایک اور فائدہ بتاؤں گا۔ صدمات کا علاج ہے، ٹینشن کا علاج ہے۔ جس کو کسی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یا طلاقیں ہو گئیں، یا کوئی حادثات ہو گئے، جس سے دماغ معوف ہے، جس سے دماغ طاقتور نہیں، جس سے دماغ ختم ہو چکا ہے، دل کی دھڑکن ہے، چھوٹا سا بھی دھماکہ ہو تو دل کی دھڑکن تیز اور جسم کانپنے لگتا ہے، اس کا بہترین علاج ہے۔ آپ شکر کے ساتھ گرمیوں کے علاوہ گرم دودھ میں پئیں، یا سادہ پانی، نیم گرم سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ صدمات کا علاج ہے، حادثوں کا علاج ہے، شوکس کا علاج ہے، اور بہت زبردست علاج ہے۔ اس کو سمجھیں اور اس کو غور سے دیکھیں۔ اس کا آپ ایک دانہ اٹھائیں، اگر آپ کے پاس مائکرو اور کوئی دوربین، خوردبین ہے تو آپ اسے دیکھیں، اس کے ایک دانے میں صحت کی پوری تحریر لکھی ہوئی ہے، صحت کی پوری تحریر لکھی ہے۔ تو اس کے اندر تو شفا ہی شفا ہے، راحت ہی راحت ہے، عطا ہی عطا ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب دور سے آ رہے تھے، قریب آئے تو میں انہیں پہچاننے میں محنت کرنے لگا، کوشش کرنے لگا کون ہے، اور قریب آئے تو میں نے پہچان لیا، ان سے ملا۔ وہ تو گوشت پوست کا پہاڑ تھا۔ وہ موٹر سائیکل بائک پہ جب بیٹھتا تھا، آدھر ادھر لٹکا ہوا ہوتا تھا، آدھر ادھر، اور اگر تھوڑا سا ادھر لٹک جاتا تھا تو خود ادھر گر جاتا تھا۔ پوچھا یہ کیا کیا؟ مجھ سے کہنے لگے میں نے کوئی 3-4-5 کلو بلنگو کھایا ہے، تخم بلنگو، یہ میرے سامنے پڑا ہے، یہ میں نے کھایا ہے۔ کیسے کھایا ہے؟ کہ بس ایسے 2 چمچ لے کے نا
ऐसे पानी में फौरन घोल के रखता नहीं था, पी लेता था। सुबह कभी दिन में 3 दफ़ा, कभी दिन में 2 दफ़ा, कभी दिन में 4 दफ़ा। कहा मैंने कोई तरतीब से नहीं खाया, खाता रोज़ाना था, कभी 2, 3, 4। इसको मैंने पी लिया बलंगू, और कुछ थोड़ी सी परहेज़ की। कहा मेरे पास दुनिया की हर दवा थी, मैंने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया अपने जिस्म की चर्बी को घुलाने के लिए, अपने जिस्म के पेट वेट को ख़त्म करने के लिए, अपने मोटापे को ख़त्म करने के लिए। जो बलंगू ने मेरा साथ दिया वो किसी ने साथ नहीं दिया। आएँ इससे दोस्ती करें, आएँ इससे अपनी नज़रों से दूर ना करें, और इंशाअल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी और बाकमाल ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा और साथी बनाएं। आबाद रहें, शाद रहें, बामुराद रहें। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ना पूड़ियों में एक दवाई बना के देते थे, कूट के देते थे। कहते थे फलां चीज़ का दलिया ले लो, उस दलिया को रात को पका के रख दो, सुबह ये पूड़ियाँ छिड़क के, अगर तो शुगर नहीं मीठा डाल दो, शुगर है मीठा ना डालो, छिड़क के खा लो। सिर्फ एक पुड़िया, और हमेशा देते ही एक पुड़िया थे। लोग क्या करते, किसी दूसरे को भेज के दूसरी पुड़िया लेते थे, एक चेहरे को एक पुड़िया देते थे, और वो हैरान होते थे कि तुम दूसरी पुड़िया लेते क्यों हो, इस एक पुड़िया से तुम्हारा मसला हल हो गया, सिर्फ एक पुड़िया से। और लोग चंद बार खा लेते थे, बाज़ लोग चंद दिन खा लेते थे, बाज़ लोग चंद हफ्ते इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन फ़ायदा एक पुड़िया से वाकई होता है और दायमी होता है, आर्जी नहीं होता। अब वो पुड़िया कौन से, उनसे कौन ले, वो दवा कौन दरियाफ्त करे? दवा देने को तैयार नहीं। वो कहते हैं आप जितने पैसे दे जाएं, पैसे नहीं लूंगा, दवा के पैसे मेरे लगते हैं, जितने दे जाएं आप दे जाएं, लेकिन मैं दवा नहीं बताऊंगा। किन जतनों के साथ, किन कोशिशों के साथ, किन मेहनतों के साथ ये दवा हासिल की, वो एक लंबी दास्तान है, एक कहानी है। उसके लिए कितने चक्कर लगाने पड़े, कितना माल लगा, कितनी जान, कितनी मिन्नतें, कितनी जारियां, कितनी खुशामतें, कितनी दरखास्तें, और उनके साथ कितनी निस्बतें जोड़नी पड़ी, निस्बतें जोड़नी पड़ी। दवा मिल गई। मैंने भी फैसला किया कि इस दवा को मैंने नहीं छुपाना, और इस दवा को लोगों को बताना है, पुकार पुकार के बताना है, पकड़ पकड़ के बताना है, मिन्नत कर कर के बताना है। क्यों? ये दवा आज उस रोग के लिए निहायत मुफीद है जिस रोग का इलाज दुनिया में नहीं है भी तो आर्जी। दवा खाई, इलाज, दवा छोड़ दी, फिर वैसे, और बेशुमार तो ऐसे हैं जिन पे वो गोलियां और दवाएं भी असर करना छोड़ जाती हैं। एक शख्स मुझे मिला, मुझे कहने लगा कि आप सुना है फितरी इलाज करते हैं और कुदरती दवाएं देते हैं, क्या आज भी फितरी इलाज है? दुनिया कहाँ, साइंस कहाँ चांद तक पहुंच गई, और आज भी हम वो छोटे छोटे टोने टोटके। तो मैंने उससे कहा ये हमारी मालूमात की कमी है। सारी साइंस फिर से फितरी इलाज की तरफ लौट रही है, और फितरत की तरफ, ऑर्गेनिक फितरत की तरफ लौट रही है। सारी साइंस, सारी साइंसी ज़िंदगी और सारा साइंसी निज़ाम फितरत की तरफ लौट रहा है। मैं आज आपको एक फितरी टोटका देने लगा हूं, बिल्कुल सेहतमंद टोटका। आए फिर एक तोहफा देता हूं, जिस तोहफे को इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा याद रखेंगे। ये देखिए मेरे पास दलिया है जौ का, मैंने ये दलिया बनाया हुआ है, जौ का दलिया। ये देखिए जौ का दलिया है, और इस तरह पतला बनाइएगा। ये देखिए बहुत गाढ़ा ना बनाइएगा। और अगर शुगर है इसे फीका बना लें, और तबीयत चाहे शक्कर का मीठा डाल दें, तबीयत चाहे शहद का मीठा डाल दें। अब मेरे पास अगली दूसरी चीज़ क्या है? अगली दूसरी चीज़ अलसी के बीज है। क्या हुस्न का नज़ारा है! इसके हुस्न जमाल और खूबसूरती को देखिए, इसके हुस्न जमाल और खूबसूरती को देखिए। ये खुद खूबसूरत बीज है, अपने हुस्न में बीज है, खूबसूरत है। अब एक करम नवाजी अपने ऊपर कीजिए। एक चम्मच, ये चम्मच छोटा है, ऐसे 2 चम्मच, ये चम्मच छोटा है, ऐसे 2 चम्मच हो, ये 2 चम्मच के बराबर मैं दवा ले रहा हूं। 2 चम्मच के बराबर ये दवा मैं ले रहा हूं, 2 चम्मच के बराबर। अब आपने इससे करना है कि इसको हल्का सा कूटना जरूर है,
कूटें, ये देखें, इसको कूटें आप, कूटते रहें, हल्का 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 इसको कूटते रहें। ऐसा कूटते हुए अगर एक छोटा सा वजीफा बता दूं, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, बस ये छोटी सी मुबारक आयत है। वल काज़िमीन अल गैज़ वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास। अगर मेरी ज़ेर ज़बर कमज़ोर हो तो कुरान पाक को देख लीजिएगा। अच्छा याद रखिएगा, ये जो वजीफ़ा मैंने बताया ना, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, सिर्फ 11 बार। जिसको नींद नहीं आती, जो टेंशन में है, जो हाई ब्लड प्रेशर में है, जो सख्त डिप्रेशन में है, खाते हुए, इसको बनाते हुए और वैसे भी पढ़ लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। ये आप इसको कूटें और इसको बारीक पाउडर बना लें, बिल्कुल बारीक कर लें। और जब आप बारीक कर लेंगे, इसको बिल्कुल बारीक कर लेंगे, तो ये बहुत लाजवाब चीज बन जाएगी। ये चंद बीज उड़े हैं, ये देखिए, मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूं। ये देखिए, हाथ ऊपर दे दे और इसको कूटें। अब ये बारीक हो गया। इस बारीक शुदा पाउडर को आप ऐसे छिड़क लीजिए। ये कुछ थोड़ा सा कम बारीक हुआ है, आपने इससे ज्यादा करना है। ये देखिए, अब एक बेहतरीन लजीज और लाजवाब एक डिश है जो सेहत की पुकार है, जो रूठे हुए दिल को मनाने के लिए और उलझे हुए दिमाग, सुर्ख आंखें और भूचाल ज़दा दिमाग और जिस्म, जिसमें गुस्सा, हाई ब्लड प्रेशर और जिंदगी, बस आप इसको थोड़ा सा हिला लीजिए, मिला लीजिए। मिला लिया, हिला लिया। अब एक एक चम्मच इसको खाना शुरू करें, नहार मुंह इसका नाश्ता करें, इसका नाश्ता करें। जौ का दलिया, बिल्कुल सादा जौ, कोई जौ का दलिया ऐसा नहीं लेना जो मसनूई हो, सादा जौ का दलिया आप बना लें। इतना पतला, अलसी के बीज, इलसी भी कहती हैं, अलसी भी कहते हैं, आम मिलते हैं आपके हर्बल स्टोर में, दुनिया के हर मुल्क में, हर खित्ते में मिलते हैं। जौ के दलिए में डालें, सुबह नहार मुंह ले लें। सिर्फ 3 लोग ये दलिया खाएं, सिर्फ 3 लोग। एक वो जो हाई ब्लड प्रेशर से मायूस हो चुके हैं कि अब दवाएं भी मेरा साथ छोड़ गई। दूसरा वो लोग जो नींद जिनसे रूठ गई है, रातों को नींद को पुकारते हैं लेकिन नींद उनकी आवाज़ नहीं सुनती, नींद की गोलियां भी साथ छोड़ गई, नींद नहीं आती। तीसरा, जिनको टेंशन, डिप्रेशन और वो बेचारे घबरा गए हैं। सिर्फ 3 लोग इसका सुबह नाश्ता करें, खूब मज़े लेके करें। एक एक नवाला मुंह में डालें, उसको चूसें, उसको चबाएं, उसका जायका लें, उसका मज़ा लें। फिर अगला निवाला। आप चंद दिनों में पहली खुराक में अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के राज देखेंगे। आपका मन बोलेगा, आपकी रूह बोलेगी, आपका अंदर का निजाम बोलेगा और दे, और ये मसनूई चीजें मुझसे हटा दे। फितरत को पुकार, फितरत को तलाश कर। तो ये फितरत का सफर जारी रखना है, भूलना नहीं है। सिर्फ जौ का दलिया, अलसी के बीज 1 बड़ा चम्मच पीस के रात को जौ का दलिया बना के रखें। सुबह उठ के अगर सर्दी है जौ का दलिया गर्म कर लें, अगर गर्मी है ताज़ा रहने दें, अलसी की बीज डाल के इस्तेमाल करें तजर्बा। 3 लोग, और 3 लोग इंशाल्लाह हैरत अंगेज फटी आंखों से देखेंगे ये तोहफा अब से पहले क्यों ना मिला। लेकिन देर आया दुरुस्त आयत, अगर देर से मिल गया तो इंशाल्लाह दुरुस्त था। बढ़ें, फितरत का हाथ पकड़ें और छोड़ना नहीं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।